Assalamu alaikum. I am Dr. Fahima Imran from Sir Syed Government Girls College, Nazimabad, Karachi. Today I am going to deliver a lecture on alcohols for the students of BSc Final. General formula for alcohol is CnH2n plus 1 OH. They can also be represented as ROH. Alcohols are the compounds in which a hydroxyl group is attached to alkyl group or saturated carbon atom. So we can say that alcohols are the derivatives of alkanes in which one of the hydrogen atom is replaced with hydroxyl group. Alcohols may contain 2, 3 or more hydroxyl groups and are known as dihydric, trihydric and polyhydric alcohols. But now we are concerned with monohydric alcohols. Classification. Monohydric alcohols are classified as primary, secondary and tertiary alcohols. This classification based upon the class of carbon to which hydroxyl group is attached. As you can see in the following examples, in primary alcohol, hydroxyl bearing carbon is attached with one alkyl group. In case of secondary, it is attached with 2 alkyl groups, while in tertiary alcohol, all the valencies of hydroxyl bearing carbon are satisfied with alkyl groups. Nomenclature. There are two main systems for naming the organic compounds. The first one is common system or trivial system, and the second is IUPAC system. In common system, alcohols are named as alkyl alcohol. It means first we have to give the name to the alkyl group to which hydroxyl group is attached and then add the word alcohol. As you can see in the examples, number 1 is ethyl alcohol, number 2 secondary butyl alcohol, number 3 isopropyl alcohol, and number 4 is tertiary butyl alcohol. For naming the alcohols through IUPAC system, first of all we have to select the longest continuous chain and then start the numbering from the carbon which is nearest to hydroxyl group and try to give the lowest possible number to the carbon bearing hydroxyl group. So according to IUPAC system, we can name the following examples as number 1 ethanol, number 2 2-butanol, number 3 2-propanol, and number 4 is 2-methyl 2-propanol. Methods of preparation. Alcohols can be prepared by the following methods. Number 1 hydrolysis of alkyl halides, number 2 hydration of alkenes, number 3 hydrolysis of ester, number 4 reduction of aldehyde and ketone, and number 5 is addition of alkyl magnesium halides to aldehydes and ketones. Number 1 hydrolysis of alkyl halides. Alkyl halides react with aqueous solution of sodium hydroxide to form alcohols. As you can see in the example, alkyl halide react with sodium hydroxide, or in other equation you can see that ethyl bromide is reacting with sodium hydroxide and is converted to ethyl alcohol. This is very simple reaction, hydrolysis of alkyl halide, और हम कह सकते हैं कि ये अल्काइल हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें के पहले से मौजूद न्यूक्लियोफाइल यानी हैलाइड ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप से रिप्लेस हो जाता है. नंबर 2 हाइड्रेशन ऑफ अल्केन्स. This is simple addition of water molecule to
अल्केन्स, अल्केन्स पर वाटर का एडिशन सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में होता है और इस तरह जब हम प्रोपाइलीन को रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ तो एसिड की मौजूदगी की वजह से पहले आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं और आइसोप्रोपाइल हाइड्रोजन सल्फेट अनस्टेबल स्पीशीज होता है और वाटर की मौजूदगी में हीटिंग करने पर इसमें OS बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, यानी कि इसकी हाइड्रोलिसिस होती है और फिर ये फाइनली आइसोप्रोपाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ओवरऑल रिएक्शन है वो क्या है? एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू द मॉलिक्यूल ऑफ प्रोपाइलीन। यहाँ पर ये रिएक्शन क्योंकि पोलर स्पीशी का एडिशन हो रहा है अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल पर दैट इज प्रोपाइलीन, तो ये रिएक्शन जो है वो मार्कोनी-कोफ रूल के अकॉर्डिंग होगा जिसकी वजह से नेगेटिव पार्ट ऑफ द मॉलिक्यूल विल गो टू द कार्बन दैट हैज लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो द फाइनल प्रोडक्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, यानी कि इस तरीके से हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल्स बनते हैं। Number 3, hydrolysis of esters. Alcohols may be prepared by acid or base catalyzed hydrolysis of esters, यानी कि RC डबल बॉन्ड OR, जब इसको हम एसिड की प्रेजेंस में वाटर के साथ हीट करते हैं तो ईस्टर में हाइड्रोलिसिस होती है और ये ब्रेक हो जाता है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, जिनमें से एक है RCOOH दैट इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड द अदर वन इज आवर रिक्वायर्ड प्रोडक्ट दैट इज अल्कोहल। दिस इज सिंपल रिवर्स ऑफ द स्टेरिफिकेशन रिएक्शन। Number 4, reduction of aldehydes and ketones. Reduction of carbonyl compounds can be done either by catalytic means or by chemical means by using lithium aluminum hydride. यानी कि जब हम एल्डिहाइड या कीटोन की रिडक्शन करते हैं उसमें हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो ऐसा हम दो तरीकों से कर सकते हैं। पहला तरीका है कैटालिटिक मीन्स, जिसके लिए हम हाइड्रोजन को इन प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम यूज करते हैं और टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं रूम टेम्परेचर से 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक। दूसरा मेथड रिडक्शन बाय केमिकल मीन्स है और इसके लिए जो हम रिड्यूसिंग एजेंट यूज कर सकते हैं वो है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड या सोडियम बोरोहाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड को हम एनहाइड्रस कंडीशन में यूज करते हैं, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और एल्डिहाइड या कीटोनिक ग्रुप के अलावा दूसरे ग्रुप्स को भी रिड्यूस कर सकता है, जबकि सोडियम बोरोहाइड्राइड को हम एज ए माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट यूज करते हैं और ये सिर्फ एल्डिहाइडिक और कीटोनिक ग्रुप्स को ही रिड्यूस करता है। तो बहरहाल हम जो भी रिड्यूसिंग एजेंट यूज करें हर हाल में हमेशा ही एल्डिहाइड्स की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल्स और कीटोन्स की रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल्स बनते हैं। एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू aldehyde and ketone. Grignard reagent react with carbonyl compounds and give an addition product which on hydrolysis with dilute acid gives corresponding alcohol. यानी कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड पोलर रिएजेंट्स हैं और ये कार्बोनाइल कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट करते हैं और इस रिएक्शन के नतीजे में पहले अनस्टेबल प्रोडक्ट बनता है और फिर इस अनस्टेबल प्रोडक्ट की हाइड्रोलिसिस से कोरस्पॉन्डिंग अल्कोहल्स बनते हैं। आमतौर पर फॉर्मल्डिहाइड का अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से रिएक्शन की वजह से जो प्रोडक्ट बनेगा या जो अल्कोहल बनेगा वो प्राइमरी अल्कोहल होगा। फॉर्मल्डिहाइड के अलावा कोई भी दूसरा प्राइमरी अल्कोहल लाइक एसिड एल्डिहाइड अगर यूज करेंगे और इसका अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से रिएक्शन करवाएंगे तो सेकेंडरी अल्कोहल्स बनते हैं एंड टर्शियरी अल्कोहल्स कैन बी प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड्स विद कीटोन्स। जब भी हम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड से तो कार्बन चेन लेंथ इंक्रीज होती है जो भी अल्कोहल बनता है उसमें। यानी अगर हम फॉर्मल्डिहाइड से
अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को ट्रीट करते हैं तो जो अल्कोहल बनेगा उसमें अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के मुकाबले में सिर्फ एक कार्बन ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा अल्कोहल प्रिपेयर करना है जिसमें कि अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के मुकाबले में 2 कार्बन आइटम ज़्यादा हों, तो ऐसा करने के लिए हम इथिलीन ऑक्साइड यूज़ करते हैं। और इथिलीन ऑक्साइड को जो हम अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड से रिएक्ट करते हैं तो ये पहले एडिशन प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं और फिर इनकी हाइड्रोलिसिस से RCH2CH2OH बनते हैं, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल बनेगा जिसमें अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड के मुकाबले में 2 कार्बन ज़्यादा होंगे। तो ये सारे मेथड्स थे जिनके थ्रू हम अल्कोहल्स को प्रिपेयर कर सकते हैं। नाउ दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।